They'll have? They have a mic? Okay, once again, thank you very much. And God bless you. This is, like, like I always say, this is the nicest moment for me on my birthday. The rest of the parties, whatever happens, happens. But I think this is the nicest time. So thank you. And I hope you guys eat and drink a little well and it's not too hot here. Thank you very much for all your wishes and God bless you. Thank you. शाहरुख अभी भी थकावट है या फिर अभी भी बहुत एक्साइटेड है तो शाम No, this is nice. Now I've rested. I've slept till 2 o'clock. So I've rested from 6 o'clock to too much sleep for me. But I've been a little unwell with my sinus, but I'm feeling much better now and happier. So now it's nice and cool. I'll be fresh. I'll take a bath, play with my children and celebrate the rest of the birthday. नहीं अभी उठा वो उठा नहीं कल से उठा नहीं जब से मैं आया वापस I came back from work from Jaipur then I went to sleep so I got up by 11 he had gone to sleep so I just met him 10 minutes that's why I was half an hour late I was playing with him. आपका बर्थडे तो हाउ एक्चुअली मौका बहुत अच्छा जाता है मेरे लिए अगर फिल्म अच्छी चल जाए तो जन्मदिन में डबल खुशी हो जाती है लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि नहीं चली है तो बड़ा दुख होता है उस वक्त सो आई थैंक एवरीवन हु सीन हैप्पी न्यू ईयर एंड बट it's I get very humbled and very awkward honestly on my birthday because so many people celebrated including all of you wonderful people and people outside on the radio stations everywhere I've been going in the city so everywhere there so I think God has been too kind to me
for the kind of person I am to give me so much love. I am very, very grateful and very humble. There's nothing else I can feel on my birthday but all humility. And thank the Almighty and thank everyone over the years who've loved me so much. This is unquantifiable. ये बहुत ही मैं समझा नहीं सकता हूँ, मैं प्रकट नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कैसा फीलिंग होती है. मैं बहुत ही छोटा इंसान हूँ कंपेयर टू द काइंड ऑफ लव आई गेट. सिर्फ मूवीज में काम करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ और उसकी वजह से इतना सारा प्यार, ऐसे लोग धक्कन धक्की. कल रात से यहाँ पे पूरी सड़क पर लोग खड़े हुए थे और पटाखे. ये कुछ दुआओं की वजह से है आप सबकी. अदरवाइज मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि मुझे इतना मिलना चाहिए. थैंक यू. Shahrukh, year after year it has been different. So reminiscing your first year, like how these people had come, would you like to share something with us? Yeah, it has been amazing, at least since I've shifted to Mannat here, since 2000 or 97, 98. और यही कह सकता हूँ कि शुरुआत में आप ही लोग थे, तब 7-8 लोग हुआ करते थे. पहली बार जब केक खाया था साथ में मिलकर तो 1-2 केक होते थे and it was quite exciting जब शुरुआत की थी. अब आप बहुत सारे हो गए और जैसे जैसे एक्चुअली इसकी एक ही बात है, जैसे जैसे आप लोग, मैं आपको मीडिया नहीं समझता हूँ, आप में से 80-90% को मैं बहुत पहले से जानता हूँ. सो आप लोग भी दोस्त हैं, प्यारे हैं. तो जैसे जैसे आप बढ़े, आई थिंक बाहर फैंस भी बढ़े हैं एंड कहीं ना कहीं ये कनेक्शन होगा. आप लोग इतना प्यार दिखाते हो, बार बार मेरे बारे में बातें दिखाते हो टीवी पे, न्यूज़पेपर्स में. सो आई थिंक उसकी वजह से भी ये सब प्यार बढ़ गया है. तो इट इज़ वेरी हम्बलिंग. Every year I think it's not going to be the same next year because everybody must be used to it. And next year I think I'll be 50, so it becomes even more special. बहुत लोग मुझे मिलते हैं, अरे 50 तो बहुत अच्छा होता है, और भी बड़ा होता है. So मेरे लिए बड़ापन नहीं है कि इतना प्यार मिलता है and हर साल बढ़ता ही जा रहा है. और जो बाहर पुलिस वाले हैं और भी खफा होते जा रहे हैं कि भीड़ बढ़ जाती है, ट्रैफिक बढ़ जाती है. So I'm sorry to the police and all. जितने मेरे नेबर्स हैं उनसे मैं माफी चाहता हूँ बिकॉज आई थिंक ये 2-4 दिन जो है बहुत तकलीफ पहुँचती है सबको. Hi Shahrukh, wish you a very happy birthday. Thank you. Shahrukh, what's your thought on turning 49? I've always said this, I think last year also if you were here, I don't understand the age at all. Physically I feel very good. Work-wise I feel very energized. अभी मैं शायद कल से इंशाल्लाह फैन की शूटिंग शुरू कर दूंगा. So I feel very happy just going and working. और मैं जितना भी काम करता हूँ, I don't know what is one supposed to feel as one gets older. Is one supposed to get fatter? So no. Is one supposed to have more grey hair? I dye them. Is one supposed to have less energy? I don't feel less energy. Is one supposed to work less? I work even more. So maybe I'm regressive. मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा हूँ वैसे वैसे छोटा हो रहा हूँ. I think so. I don't feel it at all. I find it shocking actually. I meet some people who are 50 from my contemporaries who are not in films and I get quite shocked. They seem to have settled down and relaxed like uncles and papas. I don't feel like that. I'm a papa and I'm an uncle. My son's friends who are taller than me call me uncle. They've grown up in front of me. Yesterday all the girls and boys from some Halloween party सब यहाँ पर आए और सब इतनी बड़ी हो गई लड़कियाँ. As always, जैसे लड़कियाँ हैं सारी मुझसे सब लंबी हो गई जो मेरी गोद में खेली है. So I find it very strange when they call me uncle and but they don't treat me like one. So I don't know how to react to this number. I feel the same I felt 5, 7, 10 years ago really. Any wish that you have asked for this year? मतलब सचमुच मैं ऐसा एरोगेंस से नहीं बोल रहा हूँ. अब और मैं क्या विश करूँ? खुदा ने सब कुछ दिया हुआ है, अब और क्या विश करूँ? बस I just ask and genuinely I do this. I go to my rooftop and pray कि जितना प्यार मुझे आप लोगों ने दिया, दुनिया ने दिया है, मैं सबको उतनी खुशी किसी तरह से मिल जाए. मैं ऐसा बोलते हुए बहुत ही एरोगेंट लगता है लेकिन क्योंकि अब एक नाम ब्रांड जैसा हो गया तो इसलिए कह देता हूँ. माफ कर दो को लगे कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ बट मैं चाहूँगा हर किसी की जिंदगी शाहरुख खान जैसी हो, यही विश करता हूँ. शाह भाई जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई. लेफ्ट में राइट. मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ. सबसे पहले तो ये एक सरप्राइज है और आप इसे खोल कर दिखाएं सबसे पहले, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूँ. क्योंकि ऐसा निकलेगा तो नहीं, कुछ ऐसा नहीं है. और मैं चाहता हूँ स्टील वाले इसको आपके लिए स्पेशली. शाबाश इसे खोल के दिखाएं. शाबाश ये मेरी मॉम ने बनाया है स्पेशली फॉर यू.
थोड़ा गर्म है मगर ये आप बाहर जब आएंगे आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड शूटिंग जब ठंड होगी You made my day, शाहरुख. थैंक यू मम्मी को कहना बहुत कम लोग बोलते हैं एक्टर ठीक है फिर ठीक है अच्छा 2 मिनट तो बैठ लेता हूँ पसीना आएंगे तो उतारता हूँ थैंक यू वेरी मच शाहरुख फौजी में जो पहला दिन था तब से लेकर आज तक क्या मतलब बहुत बड़ी जर्नी रही है आपकी कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने फैंस के लिए न्यू कमर्स के लिए जो एक्टर बनना चाहते हैं मैं सचमुच कहूँगा मेरे को पहले दिन से लेके आज के दिन में कोई फर्क ही नहीं समझ आता है मैं बाहर ऑब्वियसली नाम बढ़ गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है लोग स्टार बोलते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो करनी पड़ती हैं जो अब करनी पड़ती हैं लेकिन जो मेरा काम का नज़रिया है जो मेरी ज़िंदगी है वो बिल्कुल वैसी है कि मैं सुबह जाता हूँ काम करता हूँ उतनी एक्साइटमेंट से अभी भी हवा से लड़कियाँ मेरे गोद में गिरती रहती हैं जैसे फौजी में गिरी थी और मैं उनको उठाता रहता हूँ प्यार करता रहता हूँ और मुझे कोई भी फर्क नहीं महसूस होता बिल्कुल भी महसूस नहीं होता जो चोटें लगी है तो कभी कभी सर्दी के दिनों में तकलीफ आती है लेकिन मुझे कोई भी फर्क महसूस नहीं होता मैंने इतने सालों से काम किया है इतने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस मेरे साथ काम किए हैं आगे बढ़ गए हैं शादी हो गई है जिंदगी बसर कर रहे हैं खुश हैं लेकिन मुझको अपनी जिंदगी में बिल्कुल फर्क नहीं लगता मुझे लगता है वैसे ही फौजी वाला हूँ और अभी भी वही काम कर रहा हूँ जमीन में कोई भी फर्क नहीं लगता है मेरे को दूसरा सवाल ये मुंबई में हजारों लोग आते हैं एक्टर बनने के लिए आपको भी आइडल बहुत लोग मानते हैं बहुत हजारों लोग मानते हैं तो क्या आप देना चाहेंगे जो एक एक्टर बनना चाहते हैं उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे कि ये करें आप मैं जो भी एक्टर बनना चाहते हैं एक्ट्रेस बनना चाहते हैं मैं देखता हूँ लड़के लड़कियों को आजकल भी मैं अपने बच्चों को यही एडवाइस दूंगा कि सिर्फ जाओ और दिल से काम करते रहो बाकी प्लानिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डिज़ाइन पीआर ये सब भी चीज़ें हैं ये सब ज़रूरी है लाजमी है आज के ज़माने में लेकिन उनका ध्यान मत दो सिर्फ एक्टिंग करो मैं एक दिन एक पार्टी में था थोड़ा 1.5 साल पहले तो मुझे एक एक्टर मेरे दोस्त हैं तो वो ऐसा कलेक्शन की बात कर रहे हैं अपनी पिक्चर की मैंने सुना ये ओपनिंग होगी ऐसा होगा ये सब बिल्कुल मत सोचो वो सब होता रहेगा जिसका बिजनेस है वो करते रहेंगे आपकी कलेक्शन भी ठीक होगी फिल्म चलेगी भी नहीं भी चलेगी लेकिन अपना काम ये है कि हम एक्टिंग करते रहें और दिल से करते रहें मैं देखता हूँ लोग आजकल जो है बहुत प्लानिंग करते हैं प्लानिंग से कोई एक्टर नहीं बनता आई थिंक इफ यू जस्ट कीप ऑन एक्टिंग उससे एक्टर बनता है इफ यू कीप ऑन प्लानिंग आई थिंक ज़्यादा वक्त उसमें ज़्यादा हो जाएगा और फिर आप जो है मेन काम है कि रोना है हंसना है लाइंस बोलनी है हंसाना है देखना है दिखना है वो सब बातें जो है और थोड़ा सा कपड़ों पे कम ध्यान दो मेरे हिसाब से मतलब मैं लड़कों को ये कहूँगा कि यार वो बड़े टिप टॉप बन के ऐसा हेयर ड्राई कम करो मेकअप कम लगाओ और स्नैजी कपड़े कम पहनो मतलब अपना नॉर्मल टी शर्ट जीन्स में रहो जो फिल्म में पहनना है वो जरूर पहनो फिल्म के लिए जो करना है उसमें जान लगा दो लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में नॉर्मल रहो स्टार मत रहो बाहर बन के शाहरुख अभी उतार लो बालों का क्या होगा मेरी थैंक यू ये देखो सीधी बात हाँ शाहरुख शाहरुख यहाँ पर शाहरुख आपकी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर सुपरहिट हो गई है आप उसमें एक चोर बने हुए हैं मतलब बाद में आप चोर एक रॉबरी करते हैं अगर हम चोर की बात करेंगे या फिर उनके फिल्मों की बात करें तो धूम है धूम 2 है धूम 3 है तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि धूम 4 में अगर शाहरुख को अप्रोच किया जाए तो क्या शाहरुख उसमें दिखाई दे सकते हैं या फिर आप मानते हैं यशराज के आप चाहते हैं हमेशा से हाँ मैं उनके लिए फिल्म कर रहा हूँ अभी फैन फिल्म चल रही है तो अमूमन में आदि और सब ऐसा मुझसे कह के रखते हैं एक ही साल में एक ही कर दूसरी वाली अपने लिए क्या कर क्योंकि 2 से ज़्यादा होती नहीं लेकिन हाँ अगर मौका मिलेगा तो मुझको जब वो फिल्म शुरू ही हुई थी Who directed the first one? Who directed the first one? Whom? संजय गरीब बहुत अच्छे दोस्त है मेरे जब हमने शुरुआत की थी तो जितने एक्साइटेड वो थे इस फिल्म से उदय और अभिषेक तब जॉन शायद लास्ट में आए थे पहले उदय अभिषेक साइन थे पिक्चर के अंदर तो मैं हर बार धूम के लिए खुद बहुत एक्साइट होता हूँ इवन व्हेन आई एम नॉट इन इट सो अगर बनते रहेंगे और कभी मैं विलन बन सकूं मुझे बड़ा कूल लगता है मोटरसाइकिल वगैरह सो इफ आई गेट अ चांस या बट दे हैवंट एवर टोल्ड मी टू डू धूम अगर होता तो आदमी मुझको जरूर पहले से कह देता शायद चांस हो हिंदी भी शायद खबरें आ रही थी
नहीं, वो मुझे पहले आ जाती खबर शायद. Shahrukh, right here in the center. First of all, I would like to wish you a happy birthday. Right here in the center. Thank you. I would like to ask you, in this new year, the new journey, if I can call it, you've embarked on, what kind of milestones would you like to set for yourself in terms of your films, in terms of your personal life, in terms of you as an entrepreneur from here on? I'll start from the opposite. I think as an entrepreneur, or because I've gotten into a lot of businesses by choice of liking those professions, I think my office has now for the last 2 years been set up in a way that most of them are run by experts. So it's a fantastic team, whether it's Kidzania, whether it is KKR, whether it is the production of Red Chillies and visual effects. Visual effects has an amazing team with Harry and Ketan. KKR is run fantastically by the whole team there, Venki. Red Chillies by Karuna, Kareem, lots of people. Manvi's here, a lot of people there. And Kidzania is an independent unit. So I really don't need to set any targets in terms of business. I just tell everyone that it should have my personality of being hospitable, being nice, kind, gentle, and hope things go nicely. Sometimes they do, sometimes they don't. Personally, yes, I'd like to spend a little more time with my children. My son is studying abroad, the other one is very young. I really enjoy that. That's a genuine personal happiness. Maximum thing that I do. Last night, one director friend of mine at the dinner asked me, how do you get your best high? Is it film? Is it this big hit? My best high, I realize, is to be with my children. And professionally, there's always a dichotomy, should I do a commercially viable film? Because if I don't do that, there are a lot of instances when I've been told, don't do such an offbeat film. People look forward to your holiday time, holiday kind of film, happy blockbuster film. Then if I do that, then people say, why aren't you doing a film which is more intense? So that choice always remains. I would like to somehow start doing at least 2 to 3 films, but it takes time. Like Happy New Year has taken 170 days. I hope fine takes 70, 80, I can do another one race and say the next one. The films do take a little while, but I would like to do at least 2.5 films and be able to strike that balance as an actor, because there are days where I feel, I should be more involved as an actor. There are days when I feel I should be involved more as a star. So that dichotomy continues, and I'm greedy, I want to do both. I try and do one sometimes. अभी Happy New Year जब किया तो मुझको excuse था, चोट लगी थी. My shoulder had just had a surgery, so I said चलो एक ठीक है. But now that I'm healthy, I would like to do 2 films, but not at the same time. It's unfair to everyone in today's time and age. All right, Shahrukh, one more question I would like to ask you. You're starting a new year today. The Maharashtra government, the Indian government, so as to say, has also started a new year. They've started a new journey. What do you have to? You are a socially aware citizen of the country. What would you like to see? The kind of changes, or what do you have to say of the new government so far? What they've done and how you would like to go? I first like to request one thing. अब आप लोग शायद नहीं, because आप politically इतने involved नहीं हैं, आप mostly showbiz में. Some of you must be covering that also. But to the media, I would say that don't jump the gun and start going first one side, wow, fantastic, and then 6 months later say not good, I think every government, every person who comes in power, whichever party it is, has been chosen by the country democratically. So they should be given a chance. A couple of years we should allow, because I think everyone has good intentions. And being socially aware, not politically so aware, but nationally aware, I think education and women empowerment, if those are basic subjects. Of course, there's economy, there is finance, and there is development, and there's infrastructure. All that is too big for me to understand. But just on a general level, as a society, I think women empowerment, goodness, and education for children. And health is already starting, cleanliness is already starting. All these things are actually social aspects. If those can be done properly and we understand it, be educated about it, the rest of it too deep for me to talk about, but let's give it time, 2 years, and let them settle down and start the new year. And एकदम हमारा ऐसा है कि opening weekend क्या है is not important. I think it is important we allow the people in power to do what they have set their targets as.
So far, fantastic, I think, the country has chosen democratically, completely overwhelming majority. I think that itself is a big victory for the country. So there will be laws and bylaws which can be passed openly without having to, worry about negotiating because they are in tandem with some other government. So I think so far so good. They have clear majority, so there will be clearer laws and bylaws, I think. शाहरुख, सबसे पहले तो आपको सालगिरह की मुबारकबाद. Thank you very much. तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000. Thank you. काफी साल हो जाएंगे बस इतना सा ख्वाब जो था वो तो आपने पूरा कर ही लिया. एक के बाद एक माइलस्टोन्स आप क्रॉस कर रहे हैं. जिंदगी में आगे भी बहुत से आपके साथ जो है इम्तिहानात होंगे. मैं आपसे सिर्फ एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि आपकी एक फिल्म जो है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वो 1000 हफ्ते पूरे करने जा रही है. मैं समझता हूँ कि ये भी अपने आप में एक तारीखी माइलस्टोन है. इस सिलसिले में आपने कोई मंसूबे बनाए क्या? ऐसा हमने सुनने में आया है. मुझे 2-4 दिन पहले मैंने काजोल से बात की थी. आई थिंक कुछ इंटरव्यूज वगैरह का हम जो है फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसा उसने मुझे कुछ कहा कि कुछ 15-20 मिनट फिल्म की फुटेज जो एडिटेड थी तो शायद वो दिखाई जाएगी या उसके ऊपर हम एक इंटरव्यूज बना रहे हैं. फिर मुझे अभी मैं मिला नहीं हूँ बहुत दिन से आदि वगैरह से, बट आई थिंक एक आइडिया मैंने सुना है कि दिलवाले के जब 1000 हफ्ते पूरे होंगे शायद हम सब लोग जाके फिल्म को देखेंगे. उसके बाद ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, आदि के लिए नहीं, काजोल के लिए नहीं, लेट अंजुषी के लिए नहीं. आई थिंक ये कुछ अलग ही चीज़ है. ये फिल्म से ज़्यादा है. आई थिंक एक ईरा को डिफाइन करती है हमारी वजह से नहीं. आई थिंक मैं अभी भी लड़कियों से मिलता हूँ, लड़कों से कहते हैं कि हमारी शादी दिलवाले की वजह से हुई. अभी भी लोग मतलब बहुत एक प्यार है उस फिल्म से. वो फिल्म से ज़्यादा बन चुकी है. तो आई थिंक उसको सेलिब्रेट करना ज़रूरी है और उससे सीखना ज़रूरी है. क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हमने भी वैसी फिल्म नहीं बनाई है, किसी ने वैसी फिल्म नहीं बनाई है. तो वो एक सीख है. बट आई थिंक वो दिलों में क्यों बस गई है किसी को मालूम नहीं है. और 1000 हफ्ते पे एक मोमेंट है, जैसे आप कह रहे हैं, एक माइलस्टोन जरूर है. मैंने शायद मैं गलत ना हूँ, आई थिंक द सेकंड लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म इन द वर्ल्ड है. एक चाइनीज फिल्म शायद उससे ज़्यादा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. तो बहुत बड़ी बात है और मैं उसमें हूँ. ये मेरे को बहुत खुशकिस्मती लगती है मेरी. सो यस, देयर विल बी सम सेलिब्रेशन. आई एम श्योर यशराज फिल्म्स विल डू समथिंग एंड यस जी इज नो मोर. तो शायद उस याद में भी, उसकी इज्जत के लिए भी विल डू समथिंग फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. हाय शाहरुख. Yeah. Wish you many happy Thank you very much. Shahrukh, how would you reinvent and rediscover yourself? And what is success for you now? I think Being the most successful star and actor in the Bollywood. I think reinvention and rediscovering comes from the creative people who make films with you. I think it will come when the directors think of pushing or having faith in me that कि शाहरुख तुम ये कर सकते हो. There are certain things I do very well because I've been doing them for a long time. There is a little bit of technicality in acting that I know. There is a little bit of star aura that I can create in my films. But I think as an actor, I will have to work with directors who can push the boundaries with me and say, Shahrukh, ये करना पड़ेगा. It's not about one take or 10 takes. It's about thinking new for me. And I should have the courage to say, yes, I'd like to push myself. Like I think my name is Khan was something like that. Chak De is little like that. Swades is something like that. I think even one or two commercial films have some very nice aspects in them as actors. So I think that is the courage I need to have, and that is the offers I need to have. So that reinvention, rediscovery, inshallah, will happen. What new can I do? This is an actor should only act. So I hope I can create some new. It's been years now, 25 years next year. So every 5 years, 6 years, something new comes along, and I hope I can entertain people for as long as I live, because that's the only desire I have in my heart. Shahrukh here. Many happy returns of the day. Thank you. I just want to know, you said once that you wanted to be the most recognized face in the world. Now that you're more or less among the Indians, you are the most recognized face. I would like to know from your angle, how much is your contribution as you think, and how much is Providence? तब मैं छोटा था तो ऐसी बात कर दी थी मैंने कि I want to be the most recognized face in the world. बट मैंने हमेशा कहा है जो मेरा टैलेंट है, जो मेरी मेहनत है, उससे कई ज़्यादा मुझको मिला है. और मैं ये मॉडेस्टी से नहीं कहता हूँ, ह्यूमिलिटी से नहीं कहता हूँ, ये सच्ची बात है. क्योंकि मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ, मेरे साथ एक्टर एक्ट्रेस काम करते हैं, मुझसे बेहतर है, दिखते अच्छे हैं, उतनी ही मेहनत करते हैं शायद जितनी मैं करता हूँ, और उतना ही दिल है उनका फिल्मों में काम करने का. तो सिर्फ मुझको ही ऐसा क्यों मिला है? मुझे लगता है कि एक डोमिनो इफेक्ट हो गया
कि एक ईरा के लोगों को मैं पसंद आया, वही उत्तराधिकार में बच्चों को ही पास कर रहे हैं, ऐसा कुछ है सिस्टम. आई थिंक इट्स गॉट टू डू अ लॉट विद हाउ पीपल थिंक ऑफ मी. और मैं कई बार अब नोटिस करता हूँ कि मेरी फिल्मों से ज्यादा लोग मुझे प्यार करते हैं एज अ पर्सन. एंड दिस इट्स बिकम, यू कांट सेपरेट माई कैरेक्टर फ्रॉम मी पर्सनली, which is a good thing, which is a bad thing for an actor. I need to work on those things harder. But I think it's a good thing that people love me beyond my films and give me so much love everywhere in the world. And but having said that, at 49, I'd still like to say that I was young when I said this, but I'm still immature enough to say yes, I would like the whole world to recognize me. I still want that. हाय शाहरुख, आपके राइट में यहाँ पे सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. Thank you, Mama. आज आपके जो फैंस हैं उनके लिए सबसे स्पेशल संडे है, क्योंकि आज पूरे दिन भर मूवी चैनल्स में आपकी फिल्में आने वाली हैं, और एक मेरी भी फेवरेट फिल्म है डर, जो बहुत शाम को आने वाली है. मेरा सवाल ये है कि जब डर शब्द आप सुनते हैं तो शाहरुख को किस चीज़ से डर लगता है सबसे ज़्यादा, या नहीं लगता है? ऐसा कोई डर नहीं लगता मुझको, मगर आई थिंक अपने बच्चों के लिए लगता है. आई थिंक माँ बाप को वही होता है कि अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत डर लगे. वो उस दिन मैंने एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी वीडियो देखी, एक आई थिंक मिजोरम के फुटबॉलर थे, उनको चोट लग गई फुटबॉल खेलते हुए एंड ही पास्ड अवे. तो वो ऐसा वो फ्लिप करते हैं, मेरा बेटा भी करता है. तो मैं इंदौर में था, तो मैंने जल्दी से उसको फ़ोन किया कि यार ऐसा मत करो. सो आई थिंक द ओनली डर यू हैव इज कि चिल्ड्रन शुड रिमेन हेल्दी एंड ठीक ठाक रहें. और उसके अलावा मुझे अपने बारे में, अपने काम का या नाम का डर नहीं लगता. मुझे लगता है जाते जाते भी बहुत साल लग जाएंगे इसको खत्म होते होते भी. सो मुझे उसका डर नहीं लगता. हाँ, इस बात का डर जरूर लगता है कि कई बार मैं उतना नहीं दे पाता डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, ऑडियंस को, जितना मुझसे तवक्को करते हैं लोग. तो मुझे हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि यार आई होप मैं उतना अच्छा कर लूँ जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं. मैं सचमुच चाहता हूँ कि हर फिल्म में मैं हर किसी के पैमाने पे खरा उतरूँ, हर किसी के कोई भी चीज़ करूँ. क्रिकेट के लिए खेलने जाऊँ तो मैच जीत जाऊँ. लोग मेरे साथ बहुत सारी उम्मीदें जोड़ कर आते हैं कि अगर क्रिकेट का मैच चल रहा है तो इफ आई एम देयर हम जीत जाएंगे. मुझे बहुत डर लगता है, जाता हूँ कि यार के मैच के लिए ओ यू आर लकी, इफ यू आर देयर वी विल विन. तो मुझे मालूम है मेरा कुछ लेना देना नहीं है इसके साथ, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, अगर नर्वस होता हूँ. अगर इतना लोग सोच रहे हैं तो आई होप उनकी उम्मीदें ना टूटे. सो दैट इज द ओनली फेयर आई हैव, दैट आई होप जो एक लोगों ने ऐसा मापदंड रखा है मेरे लिए कि अगर शाहरुख अभी कभी कभी मुझे whatever you touch turns to gold. So I hope it turns to gold, not because I want it, but because so many people hope it does. So to be able to keep up with the expectations and hopes of so many people who put their desires, their wants and their goals according to me because they like me so much. When I fall short of it, or if I fall short of it, that scares me. It's very scary because it's not the responsibility of your family or friends, it's the responsibility of millions of people. It scares me. I hope I don't fall short. I'm sometimes at a party, sometimes I get angry, sometimes I get extra happy, sometimes I do something, and I know some of those actions are not right maybe. Or some of them are natural actions but don't look right if a movie star does it. So I have to hold myself back, that I hope I'm able to be, I have to behave much better at times to be able to respect the fact that I don't fall short of people's hopes. That scares me. Shahrukh, hi, this is Karmik Raghunan, many operators of the Lens. शाहरुख, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि बहुत कम लोग हैं जो आपको एक्टर कहते हैं. आई थिंक दैट्स वेरी मॉडेस्ट ऑफ यू, बट बहुत ज़्यादा लोग हैं स्पेशली विद इन द इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रीज विच आर रिलेटेड टू बॉलीवुड एंड एंटरटेनमेंट, जो ये समझते हैं कि आप बहुत उम्दा बिजनेसमैन हैं और एक बहुत ही अच्छे मार्केटर हैं. व्हाट आर द मार्केटिंग टिप्स और बिजनेस टिप्स दैट यू वुड लाइक टू गिव टू कंटेम्परेरीज हु आर राइट नाउ इन द इंडस्ट्री और हु आर aspiring to be, you know, someone like you? I think it's a misnomer for people to think I'm a good marketer or I'm a good businessman. I have never done any of those things. I believe that if you have a product that you believe in, you should live with it the longest you can. So if there is a movie or a television series or whatever part of work which is creative, I think you need to own it, you need to stand by it, and you need to die by it. If I have done a movie, I need to be proud enough of it to say this is the best one that can be made. You have to believe like that. It may not be the best one. If you release the film, you have to say it and inform people that this is the best product, this is done with the best of intention. I'm sorry if it falls short, but I will not lie to you, it is done with best intention.
After the film is released, you can never disown it. Whichever it may be. I've done 55, 60 films. It's my film. It's my good, it's my bad. And there is no apology. If it is wrong, I will work harder. If it is right, I will work even harder to make it better next time. So marketing, business, everything else is related to the passion you have for your product. I know a lot of people who turn around and say, अरे यार अच्छी नहीं बनी यार, मैं बड़ी वो डायरेक्टर ने ठीक नहीं किया यार. वो किसी ने भी कुछ भी किया हो, वो आपकी फिल्म है. अगर आप उस फिल्म के चेहरे हैं, आप उस प्रोडक्ट के चेहरे हैं और आप बना रहे हैं. See, I endorse products, so I cannot vouch for them because those are made by others and I just stand by it for as ambassadorship. But the things that I make, I have to die for it while making it, and I have to die standing by it. If you can do that, the marketing and the business will follow. That's all I can say. Talking about, I joke about not being an actor. I genuinely believe in the same interview I can tell you I'm the best actor in the world, and I'm not an actor because there are days when I act well, there are days. It's a very, very organic thing. Some things happen good, sometimes the emotion comes out better, but you work hard and you stand by it. You don't disown, you don't dislike, you don't shove it into the corner. If it's your product, you have to stand by it and die by it. I think that's the best way to, everything else follows the marketing. If you love it enough, love it like your child, good, bad, ugly, pass, fail, last, first. If you stand by it, I think everything else follows. शाहरुख नए साल में कुछ खास प्लान कर शाहरुख रहे आपके हैं? सामने यहाँ शाहरुख सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको. धन्यवाद. और शाहरुख मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि हर कामयाब आदमी जो होता है उसके पीछे एक औरत का हाथ होता है. ये कहावत को कितना अपनी जिंदगी में आप अहमियत रखते हैं इसकी, और क्या मानते हैं कि ये सही है? मेरी तो कितनी औरतों का हाथ है यार. श्रीदेवी से लेकर अनुष्का शर्मा तक सारी औरतें हैं. और मतलब ऑब्वियसली घर की जो देखभाल है, the way it is done in my house by Gauri, I think it's beautiful. Because you need that kind of atmosphere at home जो फिल्मों से डिटैच्ड है. तो आई थिंक सबसे बड़ी गिफ्ट वो है. बाकी वो कितना इनकरेज करें नहीं करें, काम समझें नहीं समझें, उसके बारे में ठीक हो तो तारीफ करें, खराब हो तो सांत्वना दें, नहीं वो सब तो है. But I think the most beautiful thing is to be able to handle a household, to keep it detached from my work. Otherwise जैसा आपने कहा, मुझे लगता है genuinely मजाक के बिना भी मेरे कामयाबी के पीछे बहुत सारी औरतों का हाथ है. एक्ट्रेसेस का हाथ है, डायरेक्टर्स का हाथ है, फारा है, मेरे साथ जो काम करती हैं लड़कियां, औरतें, वो उनका हाथ है. मीडिया में बहुत सारी लेडीज हैं, उनका हाथ है. मैं बहुत प्यार से कह रहा हूँ ये, बिकॉज मैं उस बात को रिस्पेक्ट करता हूँ और समझता हूँ. मुझे मालूम है ये बात कि ये नहीं कि मर्दों ने नहीं किया, वो भी करते हैं. बट समवेयर डाउन द लाइन माई लाइफ हैज बीन लेड बाय वुमेन. माई मदर फर्स्ट, देन माई सिस्टर, नाउ माई डॉटर, वाइफ इन द मिडिल. It really has been led by women, and I have no qualms stating that. A lot of people think मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ. अगर it will be wrong of me not to be any other way. मुझे जिंदगी में इतना दिया है औरतों ने. तो जब हम ऐसे फिल्मों में बोलते हैं किसी घर माँ होगी, बेटी होगी, बहन होगी, आई थिंक हर एस्पेक्ट में मुझे औरतों ने बहुत दिया, और मेरे लिए एक्स्ट्रा काम में भी बहुत दिया है. जितने भी एक्ट्रेसेस ने काम किया है मेरे साथ, बहुत सिखाया है. कल रात को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें में से जो पहले की हैं, जो अभी कर रही हैं, मतलब बहुत 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 प्यार दिया है. और हमेशा क्रेडिट जो है हीरो को दिया जाता है फिल्म का. तो मैंने बहुत सारी फिल्मों का क्रेडिट लिया है जो एक्चुअली 90% या 95% ऐसी फिल्में हैं जो लड़कियों की और एक्ट्रेसेस की वजह से है. तो मैं उनके नाम का खा रहा हूँ, और मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ. और आई थैंक देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. Shahrukh, right here in front of you, Kamya from ABC. Hi, Kamya. Very happy birthday to you, Thank you, Shahrukh. Shahrukh, हमेशा आप बात करते हैं about the special bond that you share with your children, और किस तरह उनकी छोटी छोटी चीज़ें आपको खुश करती हैं. और now that Aryan has literally stepped into your shoes in terms of he's grown up and big, Abraham is very small. कोई ऐसी चीज़ जो आपके बच्चे आपके बर्थडे पे करें that makes you very emotional? What is that special thing that they do for you? एक्चुअली आप बोल रहे हो तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं इतना करता हूँ उनके लिए, वो कुछ भी नहीं करते मेरे लिए. अब तो कार्ड भी देना छोड़ दिया उन्होंने. तो नथिंग आई थिंक यही खूबसूरती है हमारे रिश्ते की कि बच्चों को बाप के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बाप ही करता रहे जिंदगी भर. आई थिंक आई हैव टू डू नथिंग. आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड एनीथिंग फ्रॉम देम. मेरा मजाक चलता है इनसे. मैंने कहा यार वो गिफ्ट पापा बहुत बड़ी है, बड़ा टाइम लगेगा खोलने के अंदर, एंड ऑल. कोई गिफ्ट नहीं है, कुछ नहीं. सो आई थिंक द सेंस ऑफ ह्यूमर अबाउट इट
I told my daughter also कि maybe you haven't written a card this time. She said, but I've written so many years now. You read one of them, same thing I will write in it. So I think that ease of relationship जो हमारे बीच में है, दोस्ती का जो हमारा रिश्ता है, एक्चुअली मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ, I don't know how personal it is, but कल रात को डिनर था घर में, and I think for the first time both my children, Aaron and Suhana, attended it with their friends. I think कुछ Halloween था या कोई और पार्टी थी, तो उसके सब दोस्त यहीं पे थे, and I think that is the greatest gift कि वो इतने सुलझे हुए और प्यार से घूम रहे थे और लोगों का ध्यान रख रहे थे, तो मुझे बड़ा फक्र हो रहा था. अपार्ट फ्रॉम दैट फिर उन्होंने यहाँ ऊपर से छलांग मार के भी दिखाई, लोगों को कर्तव्य दिखाया जो मैंने उन दोनों को सिखाया था. मेरे बच्चे थोड़े से बंदर टाइप है, तो उनको सिखाया था, वो कर्तव्य करके दिखाए. आई थिंक आई लाइक द फैक्ट दे कुड लुक आफ्टर द गेस्ट्स. आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट, एंड विद सो मच रिस्पेक्ट, एजुकेशन, और अच्छे शरीफ बच्चे. आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट आई हैव. मेरे बच्चे शरीफ हैं. खान साहब, पहले जन्मदिन वो बर्थडे आप ज़्यादा एंजॉय करते थे या ये सेलिब्रेशन ज़्यादा एंजॉय करते हैं? मैं हर साल का यार, मैं एक्चुअली जन्मदिन मनाता ही नहीं हूँ. मैं जो जन्मदिन है आप लोग के साथ ही बनाता हूँ. मैंने दिल्ली में कभी किया नहीं, मैं बहुत गरीब था, केक मतलब पेस्ट्री भी नहीं मिलती थी उस वक्त, तो टू बी एबल टू ऑर्डर अ केक एंड ऑल मैंने कभी नहीं किया. हो सकता है बचपन में माँ बाप ने किया, मुझे इतना याद नहीं, 5-6 साल की उम्र में. उसके बाद जहाँ तक मुझे याद है मैंने कोई जन्मदिन नहीं बनाया. स्कूल में होता था जन्मदिन के दिन पार्ले जी की टॉफीज लेके जाते थे, तो ऐसा 20 या 25 जो भी गिन के होती थी कि 24 बच्चे हैं तो 24 टॉफी और एक समोसा या सैंडविच बच्चों के लेते थे, और फिर वो ब्रेक के अंदर दिया जाता था. वो दैट इज द ओनली बर्थडे आई हैड. जो भी जन्मदिन मेरा हुआ है सचमुच, और मैं क्योंकि आप हो इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे जन्मदिन को जो 4 चांद लगे वो ऐसे ही लगे. मैंने कभी पर्सनली जन्मदिन को इतनी अहमियत दी है ना, बनाया गया. हाँ, घर में डिनर हो जाता है, फिल्म भी चल गई है, एक बहाना भी है हमारे पास, तो इसलिए कर लेते हैं. बट आई थिंक द ओनली रेगुलर बर्थडे आई हैव is the one that I have with you. I think this is the only birthday I have, so this is the only birthday I know, so this is the only cake that I have cut. तो ऐसे कोई sad नहीं है मेरी लाइफ, लेकिन this is the only birthday I know really. शाहरुख, प्रतीक here from Bollywood. I always say यार मुझे कोई देता नहीं रोल. I've always asked for a policeman's role, and I have a lot of respect for them. I have a lot of them working with me, and I see them. But हाँ, मुझे कोई I don't know why. I should ask someone. Maybe I don't look like a cop. I don't know. I look nice in a uniform. I worn it once or twice. I think एक फिल्म थी वन टू का फोर, उसमें मैं रॉ ऑफिसर था, तो 1-2 शॉट्स थे मेरे पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर. I've done an Air Force officer, as you said. I've done an Army officer. I've been in the Navy. मैंने हर किसी की हर यूनिफॉर्म पहनी है, लेकिन यार they don't give me a role of a policeman. Maybe I don't look tough enough. अभी तो मैंने एक पैक भी बनाया, तो शायद मुझको दे देंगे. मैं करता हूँ कोशिश यार. I keep asking, but nobody gives me a cop role. Yeah, and this is something I told people. मैंने बताया था लोगों को कि मुझे पुलिसमैन का रोल नहीं दिया था. इतने साल हो गए, मैं इतनी कोशिश करता हूँ. जैसा आपने कहा, सिंगम है, चुलबुल पांडे है, और भी हैं बहुत सारे. अमित जी करते थे बहुत सारे, तो मुझे हम तो बड़े हुए रोल्स को देख कर हुए. सो मुझे बहुत तमन्ना है यार कि कोई मुझको दे अच्छा पुलिस का रोल. सो इंशाल्लाह अभी अगली 2 फिल्मों में तो नहीं, मुझे चोर के रोल है अगली 2 फिल्मों में. सॉरी मैं शक्ल से चोर लगता हूँ. Hi Shahrukh, this is Urvi here of your films. I don't know if she's coming on the set. She's very shy, but ironically she's the only one who wants to be an actor. I've always said that, and I hope she does. So जैसे फिल्मी स्टाइल में होता है, जो बच्चा एक्टर बनना चाहता है ना, उसकी शक्ल पर नहीं दिखाते स्क्रीन पे. So इसलिए, but jokes apart, yeah, she wants to be an actor. So inshallah, if she works hard, मेरी बहुत दुआ है उसके साथ कि वो एक्टर बने. जैसे मैंने कहा कि लड़कियों ने मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले किया है, और मैं चाहूँगा कि मेरी बेटी जो है हिंदी फिल्म हीरोइन बने, और उसका भी शौक है. तो होपफुली मोर देन अ कैमियो विल सी व्हेन शी डिसाइड्स टू एक्ट. एंड अभी तो पढ़ाई करनी है उसको. व्हेन शी स्टडीड, एजुकेटेड हरसेल्फ इंशाल्लाह, सो शी माइट डू, आई होप शी डज मोर देन अ कैमियो. शाहरुख, हाय, दिस इज सोच. बट आपकी जो हार्ट शेप से, वो ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो शाहरुख चाहते हैं कि उनकी पूरी हो, या अगर कोई ऐसी कमी लगती है शाहरुख को अपनी लाइफ में, तो वो क्या होगी? मैं क्या डिस्क्राइब करूँ उसको, ऐसे खुशी के मौके पे क्या बताऊँ कि क्या कमी है. हाँ, लेकिन बाहर से वही दिखता है जो हम दिखाते हैं. आप लोग भी जब मिलते हैं अमूमन अच्छे मौके पर ही मिलते हैं, और मैं चाहूँगा कि कभी ज़िंदगी में हम बुरे मौके पर मिले ही ना, और मिले भी तो मुझसे अच्छा ही करना यार, मुझको बुरा मत करना चाहता. सो आई डोंट नो व्हाट टू से, बट या अपनी अपनी तकलीफ होती है. जिस स्टेज पर मैं हूँ, हमारी अपनी कुछ कमियाँ हैं,
कुछ ऐसी चीजें हैं जो लगता है कि बेहतर हो सकती है, एग्जैक्टली उतनी ही नॉर्मल है जितनी आपको तकलीफ होती होगी. ऑफ कोर्स मे बी एक दो चीजें बेहतर होंगी क्योंकि मूवी स्टार है, थोड़े बहुत फायदे हो जाते हैं उससे, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू फील कैन बी अकम्प्लिश्ड इन लाइफ दैट आई हैवंट. देयर आर डेज व्हेन यू फील अ लिटिल अलोन, क्योंकि जिस नजरिए से मैं जिंदगी लीड करता हूँ बहुत सारे लोग वहां पर है नहीं, उस बात को समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, मैं डिस्कस नहीं कर सकता. बहुत सारे लोग मेरे वाले मुकाम पर नहीं है कि मैं फोन करके बोलूँ यार मेरे साथ ये हो रहा है क्या करूँ. सो या there are a lot of things which you don't see, you may never get to see, but इसका मतलब I'm not trying to gain empathy for movie stars. I think the life is very good, but yeah, there are little small issues like everybody else has, and one day when we'll sit down longer then we can talk about it. Hi Shahrukh. She's asking मैं हमेशा ब्रांड के साथ काम करता हूँ, लेकिन अगर ब्रांड ना हो तो उनके साथ काम करूँगा एज अ प्रोड्यूसर और नॉट. एक्चुअली वाई नॉट, ऐसा लगता है. आदि पहली फिल्म बना रहे थे अपनी जब उन्होंने मेरे साथ बनाई, करण पहली फिल्म बना रहे थे, शिमित दूसरी बना रहे थे, राजीव मेहरा पहली बना रहे थे, सेकंड बना रहे थे, अब्बास मस्तान सेकंड बना रहे थे, अजीज मिर्जा ने पहली फिल्म बनाई है. अगर मैं गिनूँ मेरी 50 फिल्मों में से, सो फारा खान की पहली फिल्म मैंने बनाई. सो आई थिंक 70-80% मैंने नए लोगों के साथ ही काम किया है. अब वो उनकी किस्मत है, एक फिल्म करने के बाद वो बड़े ब्रांड बन जाते हैं, करण जौहर बन जाते हैं, ऋतिक चोपड़ा बन जाते हैं, फारा खान बन जाते हैं, शिवत आमीन बन जाते हैं, सबके नाम एकदम सॉलिड हो जाते हैं. तो ऐसा नहीं, आई थिंक मेरी खुशकिस्मत, मुझे ऐसा लगता है जो लोग पहली फिल्म बनाते हैं ना वो बहुत अंदर से आती है, तो लोगों को करनी चाहिए फिल्म जो पहली होती है. मुझे लगता है आप अगर ये मैंने स्टडी किया है दिमाग में कि आप पहली फिल्म देखेंगे डायरेक्टर्स की तो बहुत दिल से आती है. You know, whether it is, I can name some. ये नहीं कि दूसरी अच्छी नहीं है, but Curious Cutie, पहली फिल्म, खिलाड़ी अब्बास मस्तान जी की, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मैंने प्यार किया. You see the first films, and there are lots of them, there are lots of directors, even offbeat directors. पहली फिल्म जो है कुछ बड़ी पर्सनल सी होती है, कुछ so many films, अब तक 56, really nice work. आई थिंक वो दिल से निकलती है. तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमेशा उसके साथ काम करना चाहिए, क्योंकि वो पहली फिल्म जो होती है जिंदगी से ज्यादा रिलेटेड होती है, उसमें ज्यादा सच्चाई होती है. फिर उसके बाद टेक्निक आ जाती है, फिर फॉर्मूला आ जाता है, फिर एक्सपेक्टेशन आती है ऑडियंस की. सो आई थिंक आई वुड लव टू वर्क विद पीपल हु आर. अब तो मेरे खुद का प्रोडक्शन हाउस है, अगर किसी के पास ना हो प्रोड्यूसर तो मैं वो भी ऑफर कर सकता हूँ. आई वुड लव टू वर्क विद पीपल, एंड आई हैव वर्कड विद पीपल हु आर न्यू फॉर मेनी इयर्स. इफ आई काउंट द लास्ट 3-4 यश जी को छोड़कर, या राहुल रवेल जी को, रमेश सिप्पी जी को छोड़कर, सुभाष जी को छोड़कर, मोस्ट ऑफ माई डायरेक्टर्स वर न्यू डायरेक्टर्स. शाहरुख, हमने आपको आमिर की तरह ऑन स्क्रीन अभी तक देखा है, आमिर खान के साथ क्या कुछ ऐसे चांसेस हो सकते हैं आगे या फिर आमिर शाहरुख अपनी इंटरेक्शन टीम में कुछ ऐसी स्क्रिप्ट लेके आए जो कि आमिर के साथ आपने. आई थिंक मैं तो अपने लिए भी स्क्रिप्ट नहीं ला सकता, डायरेक्टर को लानी पड़ेगी. आई थिंक लास्ट टाइम जो हमारी एक स्क्रिप्ट आशुतोष बहुत साल पहले हमने डिस्कस की, सबके हम तीनों दोस्त हैं, आशुतोष भी, आमिर में, तो बहुत पहले हमने एक स्क्रिप्ट सोची थी साथ में करने की, वो किसी वजह से हुई नहीं, उसकी जगह स्वदेश हो गई, फिर वक्त नहीं मिला. लेकिन कोई डायरेक्टर हो जिनके पास ऐसा रोल हो जिसमें हम दोनों काम कर सके तो बहुत अच्छा होगा. हम खुद बनाए वो नहीं होगा. आई थिंक टू सिट डाउन एंड थिंक ऑफ अ स्टोरी फॉर 2 actors नो, बट इफ देयर इज अ डायरेक्टर हु हैज अ 2 hero फिल्म, क्योंकि अच्छा रहेगा अगर हम एक फिल्म करें साथ में. इतने सालों से साथ में काम कर रहे हैं, दोस्ती है, जानते हैं, और लोग ऐसे ही कॉम्पिटिशन करते रहते हैं, तो इट विल बी नाइस कि अगर हम एक साथ में फिल्म करें. बहुत मजा आएगा. हमने थिएटर बहुत किया है, स्टेज पे काम किया है वर्ल्ड टूर्स में, वैसे भी मिलकर बहुत डिस्कस करते हैं चीजें. इट विल बी नाइस इफ देयर इज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर हु कैन मेक अ फिल्म, राइट अ फिल्म फॉर बोथ ऑफ अस, एंड देन झेलो द स्ट्रेस ऑफ कि कौन बेहतर है, और मीडिया कहेगा आमिर ने रोल कटा दिया, शाहरुख ने उसको एडिट कर दिया, ना वो सब चलेगा. बट आई थिंक इट विल बी रियली नाइस टू वर्क टुगेदर इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी. खान साहब भी हैप्पी न्यूज़ ऑफ टुडे. सर मैंने कुछ आपके लिए बनाया है, बट एक पसंद नहीं आएगा तो वो तो मेरे इंटरेस्ट में बात. हैप्पी बर्थडे सर, आई हैव मेड फॉर यू. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे. Do you want me to sign and give it back to you? वो इसका जन्मदिन का प्रेजेंट देगा, क्या वापस चाहिए साइन करके मुझको. Do you want a pen?
मार्कर है किसी के पास यार? ये अच्छा है तो बस बेटा, हाँ मार्कर से चलेगा यार। हाँ थैंक यू। SU RBHI. R RBHI. Subi. Yes. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. मेरा हक वापस करोगे? Love you. Thank you, thank you. खान साहब सर, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू। वी ऑल अप्रिशिएट, वी ऑल लव योर हम्बलनेस। मेरा सवाल आपसे ये है कि तैयारी है तुम्हारा आइडिया है कि जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ। अभी तक चांद पे पहुंचाओ, मंगल में बचा के इसको भेज दो आगे एकदम यार। एक्चुअली सच बात है, मैं ह्यूमिलिटी से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इतना जो रिलीज अभी इतनी बढ़ गई है। आई थिंक हर फिल्म नया रिकॉर्ड, बड़ी फिल्म जो भी आएगी वो नया रिकॉर्ड तोड़ेगी फ्राइडे। मैंने चेन्नई के वक्त भी ये कहा था कि और ये मुझे थोड़ी समझ है बिजनेस की, क्यों कर रहा हूँ मैं 5-10 साल से। जो भी नई फिल्म आएगी, थिएटर बढ़ गए, आई थिंक मार्केटिंग बढ़ गई है, रीच बढ़ गई है, वेन्यूज बढ़ गए हैं, ऑडियंस का झुकाव जो है फ्राइडे सैटरडे संडे की तरफ ज्यादा बढ़ गया है। ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम ये बोलते रहे कि नहीं यार वो फ्राइडे सैटरडे संडे का बिजनेस नहीं होता, वो होता है, छुट्टी के दिन बेहतर होता है। और ये एक्सेप्टेड ट्रूथ है कि अगर ईद को फिल्म आएगी, दिवाली को फिल्म आएगी, क्रिसमस को आएगी, इन 3 हॉलीडेज में क्रिसमस सबसे बड़ी होगी, ईद उसके बाद है, फिर दिवाली है, फिर 15 अगस्त है, ऐसी छुट्टियां हैं, 26 जनवरी है, जिसमें फिल्म के बिजनेस को फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसका अगर श्रेय जो है मैं लेने लगूँ तो गलत है। मुझे लगता है सिस्टम ऐसा बन गया है। फिर मैंने देखा है टिकट के प्राइसिंग भी, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है कि संडे को थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, सैटरडे को कम करते हैं, वीकडेज पे पैसा कम करते हैं। ये स्ट्रैटेजी है पूरी। पहले इतना नहीं होता था। पहला था 4 हॉल में आती है पिक्चर, एक ही टिकट का प्राइस है, चली नहीं चली, लंबी हो गई। अब बहुत स्ट्रैटेजाइज होता है। तो I'm also very proud of the fact that I'm an outsider and I've been able to do business here in this film industry, and I have been able to survive for so many years. A place which is very, very all-encompassing and loving, but also very harsh at times. That it's waiting for you to make a fault or a misstep. It loves you dearly and it punishes you as strongly. But having said that, I think a lot of people have been responsible for my success, and I think it will be very, 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 very. It's very awkward to think that I am somebody so important that I should play me. As a matter of fact, I think my personal life is so important that I will never allow Shah Rukh Khan to star in it. कि यार तुम बहुत बड़े स्टार हो, इतने छोटे आदमी की लाइफ के बारे में हम तुमको नहीं ले सकते. So I would never get cast to play my own life because I don't think my life is so important. My stardom is, like I said, multifold and multiplied by people like you and fans. But I think my personal life is not so important that there should be a story about it. You know, we have some amazing filmmakers. I mean, in recent times you'll have Amit ji, and you have Kishore Kumar ji, you have Mohammad Rafi ji, Lata ji. I think you have Gurdat Sahab, Raj Kapoor Sahab. You have such big doins, Dilip Kumar Sahab ji. There's so many people that you can write a story on lives which are more interesting and more pertinent to the film industry than mine. I think I'm too small a person to make a film about and then be cast in it. Not at all, I don't think so. I have a long way to go. जब मंगल में पहुंचूंगा तो तब करेंगे. अभी डायरेक्शन नहीं करेंगे. अभी मुझको काम मिल रहा है एज एन एक्टर, तो एक्टिंग करता रहूंगा मैं. Back on. You started on your. Seeing the life that I've led, I have become a little more reclusive and quiet. मुझको थोड़ी सी जिंदगी जो है अब समझ आ गई है. Not only film industry की जिंदगी, मेरी आधी जिंदगी खत्म हो गई है. I'm 49, assuming I hit a century also. I think I've lived half my life today, and I think I have become a little more quiet, reclusive, patient, and I believe as strongly as I did 25 years ago, but I'm not so talkative about my belief. I'm a little more controlled, and I know things go wrong, and I'm ready for things to go wrong. I accept them with more humility and maybe even more resoluteness.
I'm more resolute and more, I don't break down easily now. I know that things will go wrong, but I get affected, but I don't break down so easily now. So there is a huge change, I think, in the last 25 years. As a matter of fact, in the last 8-10 years, I've changed a lot. I've become quieter about my emotions to myself, not outside, to myself. पहले मैं बहुत गमगीन होके अपने आप से ही दुखी हो जाता था, खुश होके अपने आप से ही खुश हो जाता था. I've become a little quieter about my emotions to myself in the last 25 years. Hi, Shahrukh. I'm saying it honestly. I know it may sound cliche and strange. My life means nothing more to me. Yes, of course, my family is there and friends are there. But my life means nothing more to me than being on sets or meeting people. I don't meet you as media. I meet you as someone who's grown up with me. Like I said, lots of you I've known for years. और कई बार लोग ऐसा बोलते हैं और मुझे बहुत दुख होता है कि इसका PR बहुत अच्छा है. मेरा PR अच्छा नहीं है, मेरा प्यार बहुत अच्छा है. And genuinely, I really believe that. I cannot explain it. I have a team, I have Manvi, I have a lot of people who work for me, work with me to talk about our films. But personally, I don't think you will ever find my team or me coming and saying, मेरे को अच्छा लिख दो, मेरा अच्छा कर. I love you people. Honestly, I'm telling you, because you are the only people I meet from the outside world more often than anyone else. I look forward to this. अभी मैं घर में था, तो घर वालों ने शाहरुख सब गुस्सा हो जाएंगे. ऐसे में गुस्सा नहीं होंगे. मैं आधा घंटा लेट जाऊंगा. ऑफ कोर्स आई एम सॉरी, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लेट आऊँ तो आप माफ कर दें मुझे, मैं लेट नहीं आऊँगा. बट बियॉन्ड दैट, आई रियली ऑनेस्टली आई फील वेरी हैप्पी. आई फील एक्सट्रीमली हैप्पी मीटिंग यू at whatever level. Some people can ask me, it's your job to ask me questions sometimes, which perhaps even you don't want to. You know, you're news people, and I respect that. Many times I hear Manvi or the person who's coordinating saying, "No, don't ask him this, you can't ask him, only film related." You can ask me anything. You're the closest to my life, and I will answer it to the best of my capability. And if I don't want to, I will say no. कि यार ये नहीं होता, मुझको समझ नहीं है. But I really like being with you people. It's got nothing to do with why I'm, and you notice this, 99% of the time I'll be smiling because I love interacting with you people, because you belong to, it's strange, because otherwise my life is very unattached to people. As an actor, I'm only on the sets. This is the only attachment I have to people, and you're my best friend, so it's because of that. Material thing? मतलब then how, थोड़ा cliche है, but my children only, no? That's the only thing. I mean, but materially I like my laptop a lot. I write a lot in it, and I keep my whole life something or the other, writing, talking, now even Googling, so I like it. I think that's something I always carry in my क्या कहते हैं, haversack. I always carry that anywhere, even if I'm going 5 minutes to a building, I always carry it with me, because it's something I always need. To write, read, listen, talk. I like my laptop. Otherwise, my children, of course. So, why do you such a if romantic is taking out on dates and all, and moonlight, whatever, candlelight dinners and all, I'm not very good with that. But I'm very loving. I can vouch for my love for a person, man and woman. But I'm very loving. Any girl who's with me will find me very romantic, because I am the person who will even go out shopping with you and not act bored or impatient. I'm so romantic. So I think that, like, I hear women saying, "Arey, my boyfriend, my husband doesn't come for shopping with me, and you know he gets bored." So I'm so romantic. I can go out shopping for your shoes and enjoy it and make no bones about it. That's the most romantic a guy can be, I think. विश्व बनने वाला, क्योंकि एक करीना बहुत इंटरेस्टेड है इस फिल्म में आपके अपोजिट में काम करने के लिए. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें तो दीपिका होगी ना फिर, बट दो लड़कियाँ कर ले. आई डोंट नो, अभी तो ऐसा कोई आइडिया नहीं है. और करीना के साथ मुझे भी काम बहुत, क्या रावण में आखिरी किया था, तो बहुत कोई अच्छी फिल्म को मिलेगी ज़रूर. आई वुड लव टू वर्क विद करीना अगेन. शी इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड. बट अभी जो अभी जो रोहित ने डिज़ाइन किया है वो चेन्नई नहीं है. हालांकि वो भी आइडिया है उनके पास, लेकिन जो अब हम करने वाले हैं वो चेन्नई एक्सप्रेस की स्टोरी नहीं है, अलग है. सो अगर रोहित को लगेगा उस फिल्म में वो कास्ट हो, विल बी रियली नाइस. बट अभी कास्टिंग नहीं की हमने इस फिल्म की. आई थिंक नेक्स्ट महीने से हम उसकी कास्टिंग शुरू करें. हाय शाहरुख सर, प्लीज़ ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे आपको
हेल्थ की या ज़िंदगी की हानि हो। मतलब कोई चीज़ इतनी बड़ी नहीं है जिससे आप अपने आप को, अपने शरीर को हानि पहुंचाएं। तो ये बहुत दुख, मैंने सुना था, मुझे पता नहीं है कितना सच है नहीं है, लेकिन मैंने कोई पेपर में पढ़ा था मैंने खुद, तो मुझे बहुत दुख है इस बात का, और आई होप वो जल्दी से ठीक हो जाए। और कभी ऐसा मौका मिले कि मुझे मालूम है लोग इतना प्यार करते हैं कि एक्स एक्टर से या एक्ट्रेस को मिलना, उसे देखना, कभी कभी बहुत, जैसे आज यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, देश भर से आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं। अभी किसी को ऐसा लगे कि हम शाहरुख को देख नहीं सके, इसलिए मैं बाहर जाता रहता हूँ 10 बार, हालांकि मुझको डांट पिटती रहती है मेरे नेबर से, लेकिन मैं चला जाता हूँ कि कोई वंचित ना रह जाए, बुरा ना माने और उसको दुख ना पहुंचे और कोई ऐसी हरकत ना करे। तो सिर्फ यही कहूँगा, कोई भी चीज़ इंक्लूडिंग मी इम्पॉर्टेंट नहीं है अपनी ज़िंदगी को हानि पहुंचाने के लिए। सो प्लीज़ आराम से काम करें। मैं सिर्फ एक्टर हूँ और फिल्में मेरी आती रहेंगी, एक मिस भी हो जाएगी तो 10 और आएंगी, टीवी पे आ जाएगी, थोड़े दिन बाद सैटेलाइट पे आ जाएगी। सो प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग विच कैन हार्म योर लाइफ और फैमिली, एंड डोंट हार्म योरसेल्फ फिजिकली एवर। You should not. I know sometimes people become passionate and angry, और हो सकता है इस मामले में मैं एक्सक्यूज हूँ कि अपने हस्बैंड के साथ कुछ और इश्यूज भी हो, but whatever it is, even if it is true, don't harm yourself physically. I think men, women should not harm themselves for small matters like this. हाय शाहरुख, आपने ट्रांसलेट हाँ, मैंने अपनी पहली फिल्म नहीं देखी है और मुझसे किसी ने पूछा था, तो ऐसा लगता है शुरुआत और फिर अंत हो गया। तो मैं चाहूँगा कि ऐसा मुझे कभी फीलिंग ना आए कि मेरी शुरुआत हुई और मेरा अंत हुआ। तो मैं पहली तो देखी नहीं है और कोशिश करूँगा कि आखिरी वाली देखूँ ना, सो दैट आई डोंट नो व्हेन आई स्टार्टेड एंड व्हेन आई एंडेड। और एक्चुअली वो बात भी है, मतलब पता नहीं कब आखिरी हो जाए, तो मैं जो अभी भी होती है वो भी नहीं देखता हूँ, जस्ट इन केस। बट आई डोंट सी माई फिल्म्स टू ऑफन, फुल होने के बाद, देखने खत्म होने के बाद। बट या आई वुड नॉट लाइक टू सी माई, मेरा बड़ा इमोशनल इस बारे में कि क्या मालूम पड़ेगा ना ऐसा, क्योंकि एक्टर की जिंदगी आई थिंक वैसे ही गिनी जाती है कि पहली फिल्म से लेके आखिरी फिल्म तक। तो मुझको अपनी जिंदगी वैसे गिनने में शौक नहीं है, मुझे बुरा लगेगा, तो शायद या आई वुड नॉट लाइक टू सी माई लास्ट फिल्म। Yes, good evening, sir. I'd be very honest, sir. I believe that every film that I do, I believe in the film that I do. I tell everyone who's making a film with me that there will always be reasons and excuses. When a film does well, we'll always find reasons to explain it. इसकी वजह से चल गई, उसकी वजह से चल गई, ये अच्छा था। अगर नहीं चलती तो बहुत सारे बहाने बना लेते हैं, यार वो खराब हो गया था, बारिश हो गई थी, ठंड हो गई थी नॉर्थ में, पता वो बच्चों की छुट्टियां नहीं थी। I think you have to believe in your film, and if you believe in your film today or tomorrow, it is going to stand true. All films should stand the test of time, and there are times, you're right, like I'd like to believe that about a lot of my films, you know, where they came and they went and people like, I know it's not done well and maybe I'm overstating it, but Phir Bhi Dil Hindustani was one such film that everybody panned it, everybody said it's a bad film, and maybe it was a bad film. But I think it was a film about media and it was ahead of its time, and maybe it is still not appreciated.